نیوز اور خبر کا مطلب ہے اہم اطلاع۔ عوامی مسائل کو عہدیداروں اور حکومت تک پہنچانے کا اہم ذریعہ ہے نیوز۔ حقائق پر مبنی شہری، ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبریں دیکھیے میٹرو اردو خبروں میں۔ سیاسی اتار چڑھاؤ، عید اور تہوار، جرائم و حادثات، تعلیمی، ادبی اور معاشرتی سرگرمیوں کی حقیقی عکاسی کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو اردو خبریں۔ کشمیر ہاؤس بیگم بازار سن 1947 سے مشہور آپ کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ شادی بیاہ ہو کہ ولیمہ تقاریب، کشمیر ہاؤس کے بنا ادھوری۔ اپنی دعوت کو یادگار بنائیے کشمیر ہاؤس کی شمع کلاسک باسمتی رائس، ہر برانڈ کے بریانی رائس، اصلی گرم مسالے، کرانہ آئٹمز اور ڈرائی فروٹ، ٹن فروٹس، ساسز، پینٹ کھجور، اصلی زعفران اور بری کے سودے کے ساتھ۔ کشمیر ہاؤس آپ کے ساتھ، سیدھے چلے آئیے کشمیر ہاؤس۔ یاد رکھیں کشمیر ہاؤس، بیگم بازار، حیدرآباد۔ شمع جو روشنی پھیلائے اور شمع باسمتی رائس ہر تقریب کی شان بڑھائے، پورے خاندان کا بھروسہ جس پر ہو اور ہر کسی کی پسند بن جائے۔ شمع کلاسک باسمتی رائس، اس کا دانہ دانہ الگ جو ہر دعوت کی لذت بڑھائے۔ 25 کلو، 10 کلو، 5 کلو اور 1 کلو کے بیگ میں اب ہر سپر مارکیٹ، جنرل سٹور اور کرانہ سٹور میں دستیاب ہے۔ شمع کلاسک باسمتی رائس۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو اردو خبریں۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے سرخیوں پر۔ سرخیوں کے پیش کردہ ہیں دبئی ہوم انٹیریئرز، بندر ہلز روڈ نمبر 1 نیئر کراچی بیکری۔ کڑپا میں ریاستی وزیر ڈی ایل روندر کی برطرفی سے دلبرداشتہ حامی خاتون کی خودکشی کی کوشش۔ نریٹمنٹ پولیس حدود میں ایک شخص کا قتل۔ مولا علی میں شادی کے گھر میں سرقے کی واردات۔ میٹرو ٹی وی کا پروگرام انصاف کی بات کا اثر شروع۔ خاص بات ہمارے ساتھ اس اتوار خسرو پاشا کے ساتھ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ریاستی حج کمیٹی کی جانب سے عازمین حج کے لیے دوسرا تربیتی کام کا اہتمام جامع مسجد دارالشفا میں عمل میں آیا، جس کی صدارت محمد خلیل الدین صدر نشین ریاستی حج کمیٹی نے کی، جبکہ مولانا تاج الدین حسین اور دوسرے علماء کرام نے عازمین حج کی رہبری فرمائی۔ اس موقع پر عرفان شریف اے ای او کے علاوہ ریاستی حج کمیٹی سے تعلق رکھنے والے عازمین حج کی کثیر تعداد موجود تھی۔ ریاستی وزیر آروگیہ شری ڈی ایل رویندر کو حکومت اور سی ایم کے پر بیجا تنقید کرنے کی پاداش میں ریاستی کابینہ سے چیف منسٹر نے انہیں برطرف کر دیا۔ آج رویندر نے گورنر آندھرا پردیش نرسمن سے ملاقات کی اور اپنا استعفیٰ پیش کر دیا، جہاں گورنر نے ان کا استعفیٰ قبول کر لیا۔ اس بات کی اطلاع پا کر ڈی ایل رویندر کی کٹر حامی خاتون نے اپنے آپ کو کیروسین ڈال کر خودکشی کی کوشش کی، جسے پولیس نے ناکام بنا دیا اور ایک مقدمہ درج کرتے ہوئے اسے حراست میں لیا، مزید تحقیقات شروع کر دی۔ چھتیس گڑھ میں نکسلیٹ حملے میں 28 افراد کے ہلاک ہونے کے بعد ماؤسٹوں کے حوصلے بلند ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نکسلیٹ سے متاثرہ علاقوں میں بڑھتی جا رہی چوکسی و تلاشی مہم سے ناراض ماؤسٹوں نے آج سی آر پی ایف کی بٹالین پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں سی آر پی ایف کے 3 جوان شدید زخمی ہو گئے۔ ضلع پولیس نے ایک مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔ درگاہ حضرت سید شاہ علی عباس رحمۃ اللہ علیہ کی زمین میٹرو ریل اتھارٹی حاصل کرتے ہوئے معاوضے کے طور پر 1,86,00,000 روپے متولی کے حوالے کرنے کی اطلاع پا کر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے صدر محمد اسماعیل حسین نے درگاہ کا معائنہ کیا اور وقف بورڈ کی موجودگی کے باوجود رقم متولی کے حصول پر اپنی تشویش کا اظہار کیا اور وقف بورڈ سے مطالبہ کیا کہ وقف بورڈ اس رقم کو حاصل کرتے ہوئے اسے غریب مسلمانوں پر خرچ کرے۔ اس موقع پر فصیح الدین اور عبدالصادق موجود تھے۔ ٹریفک پولیس کے ظلم کی وجہ سے قطب اللہ پور علاقے میں ٹھیلا بنڈی پر کاروبار کرنے والے نہ صرف اپنے روزگار سے محروم ہو گئے بلکہ ان کا لاکھوں کا نقصان ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق ٹریفک پولیس وابستہ
अमले ने इतवार के दिन सुबह के औकात में कुतुबुल्लाहपुर इलाके में फुटपाथ पर फ्रूट का कारोबार करने वालों का सामान मेवा रोड पर उंडेल दिया और बंडियों को जब्त कर ली। मुदाफत करने पर इन्हें बदकलामी से पेश आया गया। गरीब मेवा फरोश ने पुलिस के आला दौरान से इस सिलसिले में मुदाखलत की अपील की है। पूरा हंगामा करके बोले 2 दिन से बोले थे कि हंगामा करे, हम लोग का कैसा करके खाना, गरीब लोग का नहीं करके खाना है क्या, मन के खाते कि यह है लोगों का हमारा लाश हो गया, कौन देता देता कोई तो कोई नहीं देता ना, जिम्मेदारी कौन ले रहा हमारी, हम कैसा करके खाना रो रहा है, हमारे 4 बच्चे, हमारे बच्चे को कौन देखना है यहाँ पर। हाँ, ये लोग समझा के बोल सकते ना, वो लीडर रहा तो उसके घर को रहा, हम कैसे जिंदगी करना है यहाँ पर। हाँ, अभी ये नुकसान हो गया, कौन देता है, उन्होंने देता, उनका बाप देता घर से पैसा है। भाई 1-2 घंटे का हमारे को टाइम दे दो, हम जो है तो पूरा मार्केट खाली कर देते, मगर उन्होंने हमारी बात नहीं सुनते। किरण लगा के जो है तो माल के साथ जो है तो हमारे बंडे उठा के लेके गए। अब माल जो है तो हमारा पूरा सत्वल होगा, पूरा फूट गया, टूट गया। अब ये हमारा जो है तो लाखों का नुकसान हो रहा, ये कहाँ से भरेंगे हम। 1 रुपया कमाने के वास्ते आज बहुत परेशानी उठाना पड़ती। गरीबों को रुपये की बहुत अहमियत है, ये लोगों को कुछ नहीं जाता। इन्हों तो 30-40 हज़ार रुपये महीना तनख्वाह रहती है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा कैसा होगा, हम कहाँ से ला के बनना सामने वालों को। हम भी जो है तो मार्केट से उधार ला के आज माल कारोबार करते, अब मार्केट में हम क्या देंगे पैसा, कहाँ से। एक बंडी अगर से लेने गए तो 10,000 रुपये की बंडी है और 50-60 बंडी लेके चले गए, पूरा दुकान तोड़ कर चले गए। नरेंडमेंट पुलिस स्टेशन हुदूद में नामालूम हमलावरों ने एक शख्स का कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक वीराव नामी शख्स जो इलेक्ट्रिक की दुकान का मालिक बताया गया, अपने मकान में तन्हा रहा करता था। मुकामी अवाम ने इस मकान से बदबू आने की शिकायत की। पुलिस ने मुकामी वाक़े पर पहुंचकर खुफल तोड़ कर देखा, इसमें वीराव की लाश दस्तयाब हुई। पुलिस ने शुबा ज़ाहिर किया कि लाश 3 दिन पुरानी हो सकती है। पुलिस ने सिलसिले में तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। मौलाली इलाके में नामालूम सारिकीन ने शादी के घर से 10 तोले सोना 1.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक सैयद सैफुल्ला नामी शख्स के घर एक दिन कबल शादी थी। वो आज वलीमा तकरीब में शिरकत के लिए गए थे। वापस आने पर इन्हें पता चला कि दरवाज़ा खुला हुआ और घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी से सोना और रकम गायब थी। नरेंडमेंट पुलिस ने सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात शुरू कर दी। गरीब के लिए उसका मकान ही सबसे बड़ी नेमत होती है। कोई अगर उनसे इस नेमत को छीन ले तो वो क्या करे। इसके पास बेबसी और आंसू के अलावा कुछ नहीं होता। ऐसा एक वाक़या कोगटपल्ली इलाके में देखने को मिला, जहां 100 से ज़्यादा झोपड़ियों को बल्दिया की जानिब से मुनद्दम कर दिया गया। एक ही पल में इन्हें बेघर कर दिया गया, जबकि एक तरफ वहीं पर बड़ी बड़ी इमारतें नज़र आती हैं। वहां रहने वाली आवाम को ना ही कोई नोटिस दी गई थी, अचानक ही बल्दिया की जानिब से ये इक़दाम किया गया। वहां रहने वाले लोगों के सामान को बड़ी बेदर्दी से उठाकर घर से बाहर फेंक दिया गया। बल्दिया के ओहदेदारों को जब भी कोई काम अंजाम देना होता है तो गरीब आवाम को ही निशाना बनाया जाता है। गरीब आवाम सिवाय आंसू बहाने के कुछ नहीं कर सकते। मुकामी आवाम का कहना है कि लैंड ग्रैबर्स के इशारों पर चलते हुए बल्दिया हुकूमत और पुलिस ये भूल जाते हैं कि यही वो आवाम है जिनके लिए इन्हें काम करना होता है। वहाँ की आवाम का कहना है कि अब हम इंसाफ के लिए कहाँ जाएं, क्योंकि हुकूमत भी इन्हीं का साथ दे रही है। नाज़रीन, अभी वक्त तो चला है मुख्तसर से वक्फे का। कश्मीर हाउस बेगम बाजार सन 1947 से मशहूर आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। शादी ब्याह हो कि वलीमा तकारीब, कश्मीर हाउस के बिना अधूरी। अपनी दावत को यादगार बनाइए कश्मीर हाउस की शमा क्लासिक बासमती राइस, हर ब्रांड के बिरयानी राइस, असली गरम मसाले, किराना आइटम्स और ड्राई फ्रूट, टिन फ्रूट्स, सॉसेस, पेंट खजूर, असली जाफरान और बरी के सौदे के साथ। कश्मीर हाउस आपके साथ। सीधे चले आइए कश्मीर हाउस। याद रखें, कश्मीर हाउस बेगम बाजार, हैदराबाद। दुबई में 20 साल तक तहलका मचाने के बाद अब आपके ज़ौक़ की तकमील के लिए दुबई होम इंटीरियर्स हैदराबाद शहर में खुल चुका है। एक ऐसा सेंटर जहां मुनफरिद और दिलकश इंपोर्टेड फर्नीचर दस्तयाब है। शानदार और बेहतरीन सोफा सेट्स,
डाइनिंग सेट्स, बेडरूम सेट्स, वुडन फ्लोरिंग और रिमोट कंट्रोल ब्लाइंड्स। ऐसा कलेक्शन जो आपके घर और ऑफिस की तमाम जरूरियात की तकमील करता है। दुबई होम इंटीरियर्स, आज ही तशरीफ लाइए। हमारा पता, हमारा टेलीफोन नंबर, दुबई होम इंटीरियर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन। शमा जो रोशनी फैलाए और शमा बासमती राइस हर तकरीब की शान बढ़ाए। पूरे खानदान का भरोसा जिस पर हो और हर किसी की पसंद बन जाए। शमा क्लासिक बासमती राइस, इसका दाना दाना अलग जो हर दावत की लज्जत बढ़ाए। 25 किलो, 10 किलो, 5 किलो और 1 किलो के बैग में अब हर सुपरमार्केट, जनरल स्टोर और किराना स्टोर में दस्तयाब है। शमा क्लासिक बासमती राइस। वक्फे की बात की खबरों में दोबारा आपका खैर मुकदम है। एरागड्डा सुल्तान नगर डिवीजन में सईद खान की सदारत में वायएसआर कांग्रेस पार्टी ऑफिस का इफ्तिताह रियासती सेवा दल तंजीम के कन्वीनर विनय रेड्डी के हाथों अमल में आया। सईद खान ने कहा कि मुझे बोराबंडा सुल्तान नगर में आवाम की खिदमत करने का मौका मिल रहा है। इस मौके पर सईद खान की गुलपशी की गई और मुबारकबाद दी गई। हिंदी फिल्मों की मशहूर अदाकारा मनीषा कोइराला जो कैंसर से मुतासिर थी, अमेरिका में अपने इलाज की तकमील के बाद अनकरीब हिंदुस्तान लौटने का ऐलान किया। इस मौके पर इनके चाहने वालों का और इनके लिए फेसबुक पर दुआ पैगामात रवाना करने वालों का शुक्रिया अदा किया और इनकी सेहतयाबी को दुआओं का असर बताते हुए अज़्म जाहिर किया कि वह लौटने के फौरी बाद फिल्मों में दोबारा काम करेंगी। नलगुंडा इलाके में रोड पर शादी करना महंगा साबित हुआ और शादी के घर मातमकदे में तब्दील हो गया। तफसीलात के मुताबिक साइद अम्मा नामी खातून की लड़की की शादी मुकर्रर थी। महाराष्ट्र से आने वाली लारी तवाज़ुन खोकर मंडप में दाखिल हो गई, जिसके सबब साई अम्मा खातून मुकाम हादसे में फौत हो गई, जबकि इसका लड़का साई शदीद जख्मी हो गया। नलगुंडा पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का शुरू कर दी। मेट्रो टीवी पर नशर किया जाने वाला प्रोग्राम इंसाफ की बात अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और इस पर पेश किए जाने वाले एपिसोड जुल्म की कहानी, मजलूम की ज़बानी, जो एक दरिंदा सिफत इंसान के हाथों एक मासूम लड़की के साथ ज़्यादती की दास्तान पर मुहित थी। इसको देखने के बाद इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के साउथ इंडिया प्रेसिडेंट मोहम्मद इस्माइल हुसैन और इनके रुखफा मोहम्मद फैज़ुद्दीन अशरफी, सैयद अब्दुल हुसैन सादिक ने आज रियासती अखिलती कमीशन आबिद रसूल खान से मुलाकात की और मेट्रो टीवी पर नशर किए जाने वाले प्रोग्राम की अफादियत से इन्हें वाकिफ करवाया। 2 दिन पहले जो है मेट्रो उर्दू खबरें पे जो न्यूज आई थी, जो है लड़की के साथ बलात्कार किया गया और उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे थे। पुलिस वाले जो है मस्खरापना करते हुए वहां से दवाखाने को भेज रहे हैं, दवाखाने वाले पुलिस स्टेशन को भेज रहे हैं। जैसे ये रिपोर्ट मेरी नजरों से गुजरी जो है, मैं फौरी हमारे आंध्र प्रदेश माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जो है हमारे आबिद रसूल खान साहब से मशवरा किया मैं, और अनुराग शर्मा साहब से बात करने की कोशिश किया, लेकिन इत्तेफाक से उन्हें अमेरिका गए हुए हैं। तो इस ताल्लुक से जो है हमारा ख्याल ये है कि बहुत सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे हम। और मेट्रो चैनल के थ्रू जो है मैं उन फैमिली मेंबर्स को भी एक मैसेज देता हूँ। उनकी वालदा जो मैसेज दिए कि अगर मैं ये खामोश हो गई तो जो है आइंदा और बच्चों के साथ भी होऊंगा, आप यकीनन खामोश मत होइए, हम भी खामोश नहीं रहेंगे। मैं वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स की तरफ से भी हमारे इस्माइल साहब जो साउथ इंडिया के प्रेसिडेंट है, जो अभी बयान भी देंगे, उनके सामने भी जिक्र करा। इसको आगे बढ़ा के हम उस मुलजिम को सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। एक लड़की के साथ ऐसा दिल्ली में होता तो पूरा हिंदुस्तान जाग उठता। और हाफिज बाबा नगर कंचन बाग के जो है एक एरिया में ये होता तो इसको दबा दिया जाता। ये क्यों दबा दिया जाता ये हम देखेंगे इंशाल्लाह, और मुनासिब तौर पे उनको एक रकम भी हमारे तरफ से ह्यूमन राइट्स की तरफ से जो है दी जाएंगी। अल्लाह चाहा तो ये मसले का हल जल्द से जल्द निकालेंगे। हमारे आबिद रसूल खान साहब भी काफी दिलचस्पी लिए एक एप्लीकेशन एपी माइनॉरिटी चेयरमैन के नाम पे जो है उनके वालिदैन की तरफ से फौरी जमा कीजिए। हज हाउस में 502 नंबर ऑफिस भी है उनका, सेक्रेटरीट में भी ऑफिस है।
अभी अभी हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने जो मीडिया के सामने आके के ऊपर इंसाफ की बात के जरिए से हमारे तक ये बात पहुंची है कि भाई 13 साल की बच्ची जो कंचन बाग में जो वाकया हुआ है 13 साल की बच्ची के साथ जो नहीं होना चाहिए था, ऐसे लोगों को जो है सो पुलिस क्या कर रही है, पुलिस जो है सो ऐसे लोगों से मिलके इस केस को दबा देना चाह रही है और इस आवाज़ को हमेशा उठाना चाहिए लेकिन दबा देना नहीं चाहिए। उसको सज़ा मिलना चाहिए, जो आदमी काम किया है, इस घिनौनी हरकत जो किया है उसको सज़ा मिलना चाहिए, क्योंकि इस ऐसी वाक़यात में हिंदुस्तान में हर जगह होते आ रहे हैं, लेकिन हर आदमी जागने के लिए तैयार है मगर जाग रहा नहीं है। हर आदमी बोल रहा है कि भाई मैं जाग रहा हूँ, लेकिन जाग रहा नहीं कोई, क्योंकि परसों दिल्ली में जो वाक़या हुआ है उसके लिए सारा हिंदुस्तान एक जगह जमा होके हर हिंदुस्तान के अंदर उसके खिलाफ जो है सो आवाज़ उठी है। लेकिन यहाँ पे हैदराबाद के अंदर ऐसा जो हैदराबाद शहर है जो जहाँ पे हर मजलूम के साथ जो है सो कोई जुल्म होता है तो हर मजलूम को जो है सो मदद करने के लिए सारे लोग तैयार बैठे हुए रहते हैं, ऐसी जगह इस वाक़े के लिए दबा दिया जाता है, ये बहुत शर्मनाक बात है। इसी वजह से हमारे यहाँ तक मालूम है कि भाई ये वर्ल्ड ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एसोसिएशन को भी मालूम है इस बात के, जो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, इसको सजा दिला के रहेंगे। और ऐसे वाक़यात जो लोग जो शर्म से इसको बाहर नहीं ला रहे हैं वो हम तक इतला दे, लेकिन जो है सो हम इसको आगे तक पहुंचाएंगे और उसके नाम को और उनके चीज़ को हम बाकायदा इसको छुपाते हुए इसके अंदर काम करेंगे। इसी लिहाज से हम लोग जो है सो इसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। जैसा इससे पहले हमारे सादर साहब ने भी बयान दिया है, हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, तो उसी लिहाज से हमारे तरफ से जो भी मदद हो सकती है इस लड़की को हम मदद भी पहुंचाएंगे और उसको जो है सो हम पुलिस कमिश्नर साहब और जो डीजीपी साहब से भी कहकर वो कंसर्ट डीसीपी साहब है, एसीपी साहब है, जो भी बात करके उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे ज़रूर। और ऐसे हालात को जो है सो होने से लिए पुलिस अलर्ट रहना चाहिए और पुलिस का काम है कि भाई जल्द से जल्द ऐसे हालात ऐसे काम करने वालों को फौरी जो अपना शिकंजा जो है सो उसके ऊपर वो करके और गिरफ्तार करना चाहिए। इसी की वजह से हम लोग आगे मेट्रो टीवी न्यूज़ के जरिए मेट्रो टीवी न्यूज़ चैनल के ज़रिए से मैं सारे अवाम को ये बात बताना चाह रहा हूँ कि जैसा दिल्ली के अंदर जो बलात्कार का केस हुआ था तो हिंदुस्तान में सारे हिंदुस्तान में जो उस किस्म की लहर दौड़ गई थी और सारे मिलकर जो उसका एहतजाज कर रहे थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि दिल्ली के वाक़े के बाद आए दिन रोज़ाना कम से कम 2-3 रेप केस ऐसे वाक़े हो रहे, उसमें कोई मज़हब कोई कौम नहीं बल्कि हर एक के साथ ऐसा हो रहा। मैं हुकूमत से जो है सो गुजारिश करता हूँ कि ये जो है इसके खिलाफ एक कड़े से कड़ा कानून बनाए ताकि वो लोगों को सज़ा दिए तो दूसरा आदमी इसको करने से जो है सो हैबत खाए डरे। इस तरीके से जो है सो हम इस चीज़ के बारे में हमारे अनुराग शर्मा साहब से भी हम कल जाके मुलाकात करेंगे इसके बारे में और उनसे भी जो है सो रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये भी लगा और हुकूमत से भी हम ये रिक्वेस्ट करें कि कोई ऐसा कानून पास करे कि लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और जो ऐसे बलात्कार वगैरह जो केसा हो रहे हैं उसको पुलिस पीछे डाल के जो है सो उनको प्रोटेक्ट कर रही, ये बहुत गलत बात है। और इसकी शिकायत जो है सो वर्ल्ड हमारे स्टेट कमीशन जनाब आबिद रसूल खान साहब से भी अभी 1 घंटा पहले हमारी बातचीत हुई, उन्होंने भी बोले कि आपके ह्यूमन राइट्स की तरफ से एक एप्लीकेशन दीजिए, वो लोगों के खिलाफ में जो है कड़ी से कड़ी जो है मैं कार्रवाई करूँगा, वो लोगों को लाऊँगा। और वर्ल्ड ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एसोसिएशन दिल्ली जनाब शमीम अहमद साहब जो नेशनल प्रेसिडेंट है उनको भी हम एक एप्लीकेशन यहाँ से भेजे लेटर लिखे हैं, वो सेंट्रल लेवल में भी कोशिश करेंगे। मेट्रो टीवी की जानिब से खास बात हमारे साथ के उन्वान से एक प्रोग्राम पेश किया जा रहा है जो हर इतवार को पेश किया जाएगा एक नई शख्सियत के साथ। आज आपसे जुड़े सवालात को लेकर खुसरो पाशा बियाबानी सदरनशीन वक्फ बोर्ड हमारे साथ होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं मेट्रो टीवी। मेट्रो टीवी का खास प्रोग्राम खास बात हमारे साथ मौजूद है खुसरो पाशा बियाबानी साहब जो वक्फ के चेयरमैन साहब हैं। हम उनसे कुछ सवालात करेंगे। आपका इस प्रोग्राम में खैर मकदम है चेयरमैन साहब। सबसे पहले आपसे पहला सवाल है, मौला अली की वक्फ अराजी पर वक्फ बोर्ड ने मंदिर बनाने की क्यों इजाज़त दी? सब में पहले कि कोई मंदिर बनाने की इजाज़त नहीं दी गई, ना ही कोई मंदिर को ज़मीन लीज पे दी गई। वो मंदिर पिछले 30-40 साल से वहाँ पर है। जो लीज पे दी गई वो उस मंदिर के बाजू को ज़मीन थी, उस पर भी एक आदमी 35 साल से काबिज था।
وہ वक्फ बोर्ड पे रुजू हुआ कि मुझे उसको किराएदार बनाया जाए। तो हम वक्फ की आमदनी बढ़ाने के लिए कोहे मौला अली की दरगाह की आमदनी के लिए हमने वो ज़मीन एक आदमी को लीज पे दी है जिससे वक्फ का फ़ायदा हो सके। ना वो ज़मीन पर मंदिर है, ना हमने मंदिर को लीज पे दी है। किस तरह का फ़ायदा होगा इस देखिए, वक्फ के जो जायदाद इंक्रोच हो जा रहे हैं, लोग बरसों से उस पर बैठे हुए हैं। अगर किराएदार बनते हैं तो वक्फ बोर्ड को कम से कम किराया तो आएगा, आमदनी तो हासिल होगी उसकी। फ़िलहाल वक्फ बोर्ड की आमदनी क्या है और वक्फ बोर्ड खर्च क्या कर रहा है? देखिए, जब मैं चेयरमैन बना तो सालाना 15 करोड़ चिल्लर आमदनी थी, लेकिन अल्लाह के फजल से इस साल वक्फ बोर्ड की आमदनी 28 करोड़ रुपए हो चुकी है, तकरीबन डबल हो गई है। उसके अंदर ख़र्चे में तनख्वाहें रहते हैं अमले के, और जो मंशे के लिए वफ़ किया जाता है तो पैसे उस मंशे के लिए खर्च किए जाते हैं। मुतल्लिक़ा जो खातून, जो तलाक़शुदा खातून रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए कितने लाख रुपए माहाना खर्च कर रहे हैं आप लोग? देखिए, वैसा उसमें नहीं है। हम जो है हमारे को करीब 1 करोड़ चिल्लर रुपए हुकूमत से मिले हैं, करीब 1.5 करोड़ के ऊपर। वो जो मुतल्लिक़ा ख़वातीन हैं उनके पेंशन के लिए रखी गई है। जो भी दरख्वास्त है हर महीना उनको पेंशन दिया जाता है उसमें। तो कितने लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं? कितने लोगों को मालूमात के लिए किस तरह का? ये स्कीम सारे आंध्र प्रदेश के मुसलमानों के लिए है, लेकिन लोग रुजू नहीं होते हैं, उस स्कीम से इस्तेफ़ादा हासिल नहीं करते हैं। जो कोई भी तलाक़शुदा औरत होती है, अगर वो जिस डिस्ट्रिक्ट की भी हो, करीमनगर हो, निज़ामाबाद हो, वरंगल हो, आदिलाबाद हो, वहाँ की फैमिली कोर्ट में वही दरख्वास्त दे के मैं तलाक़शुदा हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, मुझ पर गवर्नमेंट की जो स्कीम है, डाइवर्स वुमेन स्कीम है, उससे मैं फ़ायदा हासिल करना चाहती हूँ। तो कोर्ट क्या करता है, एक रकम मुकर्रर करता है उनकी परवरिश के लिए, बच्चों की 2000, 3000, 1500। तो वो लाकर जब हमारे पास दाखिल किया जाता है तो महीना उसको पेंशन दिया करते हैं। तो ये तमाम अज़ला के लोग, शहर के लोग ये स्कीम से इस्तेफ़ादा हासिल करें। हमारे पास खातर ख़्वाह बजट है, और नए बजट में भी हमने सालाना 2 करोड़ रुपये की इसकी सिफारिश की है कि जो भी औरतें अपने फॉर्म दाखिल करेंगी, अपनी दरख्वास्त दाखिल करेंगी, उनको महीना पेंशन दिया जाएगा। जो ये क़ब्रिस्तानों में जो नाजायज़ कब्ज़े हो रहे हैं, जैसे लाल दरवाज़े का हाल ही में वाक़या आया, या फसलान सरवे भी कई ऐसे क़ब्रिस्ताना हैं, उसके लिए क्या मनमानी क़ब्रिस्तान में दफनाने के लिए भी कई वहाँ के जो ज़िम्मेदार लोग होते हैं कई पैसे चार्ज कर रहे हैं, और इस तरह के कब्ज़ों से आप किस तरह से इसके लिए देख रहे हैं? देखिए, ख़ाबिज़ीन के ताल्लुक़ से आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने जब से मैं चेयरमैन बना हूँ एक मुहिम के तौर पे काम कर रहा है। इसके लिए 2 टीमों का गठन किया गया। एक टास्क फोर्स ऑफिसर की टीम 5 आदमी की टीम है, दूसरी वक्फ प्रोटेक्शन ऑफिसर। सारे आंध्र प्रदेश में बिलखुसूस हैदराबाद में जहाँ पर भी वक्फ की जायदादों पर नाजायज़ ख़ाबिज़ीन थे उनको करीब 7-8 हज़ार नोटिसें इशू की गई और उनको आइडेंटिफाई किया गया। उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर रहे हैं कि वफ़ की जायदाद पर जो क़ाबिज़ीन हैं उनको हटाया जा सके, दोबारा वो वफ़ की जायदाद जो है हमें हासिल हो, हम उसको डेवलप कर सकें, या जो भी मंशे के लिए वफ़ की गई हो उसके इस्तेमाल में है। लैंको हिल्स का जो वाक़या है, लैंको हिल्स की अराज़ी पर अब आगे क्या वक्फ बोर्ड सोच रहा है, किस तरह की कार्रवाई करने का वो कर रहा है? देखिए, लैंको हिल्स का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर दौरा है। वक्फ बोर्ड जो कर सकता है अपनी तरफ से, जैसा कि उसके अंदर सामने वालों की तरफ से हिंदुस्तान के अच्छे बड़े वकला की खिदमत हासिल किए गए, तो वहाँ पर ऐसा ना हो कि हमारा वकील कमज़ोर हो और हमारा स्टैंड नहीं रख सके। इसलिए वक्फ बोर्ड की तरफ से हिंदुस्तान के मशहूर क़ानूनदा जनाब फ़ैली नारिमन साहब को रखा गया है। उनके साथ सपोर्टिंग एडवोकेट के लहरी साहब को रखा गया है, और मस्जिद कमेटी की तरफ से राजू धवन साहब को रखा गया है, और हमारे तरफ से उज़ैफ़ा अहमदी को रखा गया है, एजाज़ मकबूल को रखा गया है। ये पाँचों के अलावा जो हाई कोर्ट में पैरवी किए हैं शफ़ीक़ुर रहमान महाजिर, उनको भी रखा गया है। हमारे वक्फ बोर्ड और कमेटी की तरफ से जुमला 5 वकील ठहरेंगे इसके मुकाबले में, और इंशाल्लाह जून जुलाई में वो मुक़दम आएगा। और अच्छे तरीके से हमने काउंटर बनाया है, काउंटर नेक पे डाला है। हैदराबाद बल्कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े माहिरीन क़ानून को उस काउंटर बताया है, उनसे सलाह लेने के बाद वो काउंटर को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया। इंशाल्लाह ताला उसमें वक्फ बोर्ड की कामयाबी हासिल होगी। जो हाल ही में जो वाक़यात हुए, ये अतापुर की जो खुदशाही मस्जिद, बड़ी मस्जिद है, वहाँ पे कई कब्ज़े हुए, तो वहाँ के भी लोगों का कहना है कि वक्फ के जो एडवोकेट या वकला रहते हैं
वो लोग सही नहीं है? देखिए, इसके अंदर 2-3 बात मैं आपको बता दूं। हमारे पास अमला कम है, हम हर जायदाद को जाके नहीं देख सकते, तो वहाँ पर मैनेजिंग कमेटियाँ हैं, वहाँ पर मुतवल्लियाँ हैं, फिर उस महल्ले के नौजवान मुसलमानों की भी जिम्मेदारी होती है कि वो वफ़ की जायदाद का प्रोटेक्ट करें। कहीं नाजायज़ कब्ज़ा होता है, हम तो जाके नहीं देख सकते, वहाँ के मुसलमान नौजवान देखकर फ़ौरन हमसे अगर रब्त पैदा करें तो फ़ौरन हम उसको रोकने में कामयाब हो सकते हैं। दूसरा, आपने वकीलों का कहा है, और जो लैंडेड केसेस, जो अच्छे भारी केसेस हैं, उसके अंदर यहाँ पर हाई कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में, सुप्रीम कोर्ट में अच्छे वकला, सीनियर एडवोकेट्स, बड़े बड़े एडवोकेट्स, जैसा कि हमारे स्टैंडिंग काउंसिल भी ठहरेंगे। साथ ही साथ हैदराबाद की जो मशहूर वकला है, कई मुकदमों में हमने प्रकाश रेड्डी को लिया है, वेदुला वेंकट रमना को लिया है, महाजिर साहब को लिया है। जो ज़मीन के अच्छे केसेस है उसके लिए हम सीनियर एडवोकेट्स की खिदमत हासिल कर रहे हैं और उसके काउंटर दाखिल करने से पहले चेक कर रहे हैं, और इन अल्लाह के फजल से हम कामयाबी हासिल कर रहे हैं। करीब 250 केसेस हमने जीता है 2 साल के अंदर। ये जो हाल ही में जो बड़ा वाक़या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के नाम पे जो काजियाँ जो काम करे हैं, इसके लिए क्या खुसूसी इक़दाम उठा रहे हैं? कई ऐसे काजियों के नाम आए बहुत बड़े बड़े। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तो इस्लाम में हराम है। ये जो चैनल पे बताया गया है, एक काजी नहीं किया, एक नायब खजात का जो काम करता था वो बंदा, उस किस्म का उसका बातचीत हुई, शादीशुदा औरत के लिए इतने, और क्या करते हैं, जवान बच्ची उम्र के लिहाज से उसने कुछ पैसों का तयन किया था, उसके ख़िलाफ़ तो पुलिस में मुकदमा दर्ज है। वक्फ बोर्ड की तरफ से एमरजेंसी सारे आंध्र प्रदेश के सदर काजियों की मीटिंग तलब की गई, और उसके अंदर उनको एक मशवरा दिया गया, एक हिदायत दी गई कि आप लोग कोई भी बाहर के कंट्रीज़ से लोग आते हैं यहाँ पर शादी पढ़ाने के लिए, उनकी शादी ना पढ़ाएं तब तक कि वो उनके कौंसलेट से, उनके एम्बेसडर से, उनकी हुकूमत से शादी का परमिशन लेके ना आए। और अल्लाह के फजल से आप देखते हैं ये 1 साल भर के अंदर एक ही वाक़या हुआ है, और वो भी बच्ची हमारी यहाँ की बाहर नहीं गई। कड़ी नज़र रखे हुए हैं, जो भी काजी इनके ख़िलाफ़ काम करता है उनको फ़ौरन एक्शन लिया जाता है। आज से 8 दिन कबल जो सुल्तान बाज़ार का काजी जो ये उनके खजात के एरिया में हुआ था, गवर्नमेंट ने उनके खजात भी बर्खास्त कर दी गई है, उनको निकाह पढ़ाने का ही परमिशन ख़त्म कर दिया गया है। बखा जितने बड़े काजियाँ हैं उसके अंदर वक्फ बोर्ड रब्त कायम किया हुआ है, उसके अंदर ये इंटरकास्ट मैरिजेस हो या क्या बोलते हैं, जो बच्चों को भगा के लेके आ जाते, तमाम चीज़ों पे नज़र रखी गई है कि इसकी रोकथाम हो सके। और मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ हमारे काजी साहबान से कि वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे हमारे मुसलमानों पर, माशरे पर किसी उंगली उठाई जाए। मस्जिद इमामपुरा जिया गोड़े में फ़िलहाल अराजी कितनी है? उसकी करीब 13 एकड़ अराजी है उसकी। उसके अंदर भी इंक्रोचर्स को नोटिस दिए गए हैं, और कुछ बाउंड्री वाल का भी मसला है, और कुछ केसेस भी उसके पेंडिंग है, उसको देखा जा रहा है उसको। ये कारवान कुतुबशाही मस्जिद के कितने मलगियाँ हैं? देखिए वो रिकॉर्ड देख के बोलना पड़ेगा। उसकी भी काफ़ी, कारवान में कुतुबशाही 2-3 मसाजिद हैं, उसकी भी काफ़ी अराजियाँ हैं, और वहाँ के लोकल MLA भी एक मस्जिद के सदर हैं, और वहाँ की कमेटियाँ हैं, और कोर्ट में केसेस जारी है, उसके ऊपर भी नज़र रखी गई है। और हम हर 3 महीने को एक रिव्यू ले रहे हैं कि हमारे कोर्टों का स्टेटस क्या है, मुकदमे कहाँ तक पहुँचे हैं, उसके अंदर क्या काउंटर दाखिल किए गए हैं, और उसका भी जायज़ा लिया जा रहा है उसका। और एक ये निकाह पढ़ाने के लिए जो काजिया मनमानी फ़ीस ले रहे हैं, इसके लिए क्या, किस तरह का आप सोच रहे हैं? कई शिकायतें भी आपके पास भी आते हैं, और अमूमन हमारे चैनल को भी आते हैं, इस तरह की मनमानी काजियाँ फ़ीस वो कर रहे हैं, और एक एरिया छोड़ के अमूमन झगड़े भी होते हैं ऐसे काजियों में, तो इसके लिए क्या आप खुसूसी कोई इक़दाम उठाएं? एरिया तो ये आज से नहीं, करीब निज़ाम खजात करीब ये 300 साढ़े 300 साल से, आसिफ जाही दौर से खजात का निज़ाम दक्कन में राइज है, और अपने अपना काजियों का एरिया है। खुसूसन आपको झगड़े सिर्फ ये नए शहर में 2-3 काजियों की वजह से मिलते हैं, ये बेहद अफसोस की बात है। और जहाँ तक दूसरे बदला में देखिए, आप कहीं से भी कोई शिकायत आपको नहीं मिलती इस तरह की। और काजियों की फ़ीस की बात है तो उसके अंदर ये भी इसमें तय किया गया था, अगर कोई गरीब बच्ची की शादी चंदा करके महल्ले वाले उसकी शादी करते हैं, तो मैंने काजी साहबान से ये क्या बोलते हैं गुजारिश की थी कि वैसे गरीब बच्चों की शादियों में टोटल फ़ीस माफ़ करें। और जो शादी खानों में अच्छे शादियां होती हैं, जो हज़ारों लाखों रुपए ख़र्चा करते हैं, उसके अंदर बच्ची वाले से 500 और बच्चे वाले से 600 रुपये, यानी 1100। ये अंजुमन ने खजात खुद तय करी थी कि एक शादी के लिए 1100 रुपये लिए जाएंगे,
बच्ची से 500 और बच्चे से 600 रुपये। इसके लिए हुकूमत में ने कोई फ़ीस तय नहीं की गई है, वक्फ बोर्ड में कोई फ़ीस तय नहीं की गई है। 1000-1100 रुपये लेना मुनासिब है, उससे बढ़ के लेना गलत है। और ये जो कब्रिस्तान में जो कब्ज़े हो रहे हैं और कब्रिस्तान में जो ये मनमानी फ़ीस जो ले रहे हैं खबर तफहीम करने के लिए 500-1000 रुपये, 4000 रुपये, 5000 रुपये, इसके लिए कैसा, आप इसके लिए क्या सोचें? देखिए इसके अंदर क्या है, जो मुतवल्लिज हैं वहाँ पर वक्फ में जो है यानी तदफीन अमवात का भी इसमें आमदनी बताई गई है, तो 2500 अगर ऐसा लिया जाए तो मुनासिब है। लेकिन जो वक्फ बोर्ड हमारे तरफ से हम जो कब्रिस्तान यहाँ पर अलॉट किए गए हैं वहाँ पर किसी से कोई फ़ीस नहीं ली, क्या बोलते हैं, रकम नहीं ली जाती, उल्टा उनको जो है फ्री दफन किया जाता है। और दूसरी बात, परसों ही हमारे बोर्ड में एक रेजोल्यूशन लिया गया है कि आंध्र प्रदेश भर में जो लावारिस मौतें होती हैं, जो मुसलमान मर जाते हैं रोडों पे, उसके वक्फ बोर्ड ने जिम्मेदारी ली है सारा आंध्र प्रदेश में कि उनके कफन दफन के लिए वक्फ बोर्ड अपनी तरफ से 2500 रुपये देगा, अपनी तरफ से खबर खुदाएगा और उनकी तदफीन अमल में आएंगी। और ख़ास तौर पे जब शिकायतें आती हैं 25,000 ले रहे हैं, 50,000 ले रहे हैं, तो मैं ये ख्वाहिश करूँगा कि हमें दरख्वास्त दें कि फ़लाँ मुतवल्ली ने हमसे 25,000 रुपये पूछा, 10,000 रुपये पूछा। ये ओरली बोलते हैं, अगर कोई कागज़ी तहरीरी तौर पे कोई लिख के देता है तो हम मुतवल्ली के ख़िलाफ़ और मस्जिद कमेटी के ख़िलाफ़ एक्शन ले सकते हैं कि आप ये खबर के लिए इतने हज़ारों रुपये कैसा पूछ रहे हैं। तो अब चलते चलते एक आपसे एक गुजारिश और एक है कि आप आवाम को बता दें कि आपके वक्फ बोर्ड के तहत क्या क्या चीज़ें हैं जो फ़ायदा उठा सकते हैं मुसलमान लोग आपके दफ्तर को आके, या आप किस किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए वक्फ बोर्ड में तो वक्फ बोर्ड का काम मंशा वक्फ की तकमील करना रहता है, लेकिन हुकूमत ने कुछ ज़िम्मेदारी दी है, महकमे अक़लियती बहबूद है, और हुकूमत की तरफ से शायद ही आपको हिंदुस्तान भर में ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी जो हमारे CM जनाब किरण कुमार रेड्डी साहब ने मुसलमानों के लिए 1027 करोड़ रुपये का बजट दिया है। तो उसके लिए मुसलमानों के लिए कई ऐसे स्कीम्स हैं जिससे अपन इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि मुसलमान रुजू हों, जैसा कि माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन से आप लोन्स ले सकते हैं, उसके अंदर 30% सब्सिडी है। हर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ एक AD होता है, उससे रब्त पैदा कर लोन जो है उसके अंदर ले सकते हैं। वक्फ बोर्ड के अंदर तलाक़शुदा औरतों के लिए पेंशन है, उसके लिए आप रुजू हो सकते हैं। फिर हुकूमत के अंदर मैस मैरिजेस की स्कीम्स है, तो वहाँ पर जाकर इस्तेफ़ादा, महल्ले में बच्चे 2000-5000 रुपये डाल के शादी कर रहे हैं गरीब बच्चों की, जबकि हुकूमत खुद जो है 25,000 रुपये एक शादी को दे रही है। अगर आप रुजू होते हैं तो आपको 25,000 रुपये आपको वो मिल सकते हैं। ऐसे कई गवर्नमेंट की स्कीम्स है जिससे इस्तेफ़ादा हासिल करना चाहिए। तो अक़लियती डिपार्टमेंट से आप नेट पे मारिए, आप आ जाता आप किसके लिए क्या क्या स्कीमें बनी है। तो अब इसके अंदर जो रखा गया है, हम ये सोच रहे हुकूमत ने आज अच्छा बहुत बड़ा बजट वक्फ बोर्ड के लिए रखा है। जो कमर्शियल स्पेस है, अच्छे जगहों पे जो के प्रॉपर्टीज़ खाली हैं, वहाँ पर मलियाँ बनाए जाए और गरीब मुसलमानों को मलियाँ दी जाए ताकि उनके लिए एक रोज़गार फराम हो सके। ये काम वक्फ बोर्ड करने जा रहा है। ऑलरेडी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है जो 1,65,000 SFT से है। पीछे आज से 1 साल पहले ताड़पत्री में 25 मलियों का संग बुनियाद रखा गया, फिर उसके बाद उसका इफ्तिताह भी अमल में आया और 25 मुसलमान नौजवान रोज़गार को उसमें रोज़गार मिला। ऐसा हम आंध्र प्रदेश भर में आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जहाँ पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स पढ़ सकते हैं वहाँ पर मलियाँ बनाया जाए और गरीब मुसलमानों को दी जाए। पेश इमाम और मौज़नों के लिए भी हुकूमत संजीदगी से गौर कर रही है कि उनको नजराना दिया जाए। तो इसलिए वक्फ बोर्ड की तरफ से सारे आंध्र प्रदेश की मस्जिदों का सर्वे हो चुका है। जो मस्जिदों का आमदनी नहीं है, जहाँ पर खरिया में गांव में मसाजिद हैं जो बड़ी मुश्किल से मेंटेन होते हैं, अनकरीब में जो है मैं समझता हूँ चीफ मिनिस्टर साहब से भी ख्वाहिश करूँगा कि इसका ऐलान करें। जो पेशवा मौज़नों के लिए उसको तनख्वाह तो नहीं बोल सकते, नज़र बोल सकते, पेश करें ताकि इमामों को उससे सहूलत हासिल हो। शुक्रिया साहब आपका हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने का, और बहुत बहुत शुक्रिया। हम शुक्रगुजार हैं आपके कि आप आके हमारे को कुछ वक्त दिए, और हम इजाज़त चाहते हैं हमारे लोगों से। मेट्रो टीवी उर्दू ख़बरों में हम हर इतवार के दिन जो है एक प्रोग्राम करेंगे। ख़ास बात हमारे साथ में एक नई शख्सियत होंगी जो हम पहले आगाज़ किए हैं खुसर पाशा बियाबानी साहब से, और हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। खबरों के अख्ताम से कबल दोबारा एक नज़र सुर्खियों पर। कड़पा में रियासती वजीर DL रविंदर की बरतरफी से दिलबर्दाश्ता हामी खातून की खुदकशी की कोशिश। नरेगमेंट पुलिस हुदूद में एक शख्स का कत्ल। मौला अली में शादी के घर में सरखे की वारदात।
मेट्रो टीवी का प्रोग्राम इंसाफ की बात का असर शुरू। खास बात हमारे साथ इस इतवार खुसरू पाशा के साथ। इसी के साथ ही मेट्रो उर्दू खबरें यहीं इख्तिताम पजीर होती है। इमरान खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। कश्मीर हाउस बेगम बाजार सन 1947 से मशहूर आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। शादी ब्याह हो कि वलीमा तकारीब, कश्मीर हाउस के बिना अधूरी। अपनी दावत को यादगार बनाइए कश्मीर हाउस की शमा क्लासिक बासमती राइस, हर ब्रांड के बिरयानी राइस, असली गरम मसाले, किराना आइटम्स और ड्राई फ्रूट, टिन फ्रूट्स, सॉसेस, पेंट खजूर, असली जाफरान और बरी के सौदे के साथ कश्मीर हाउस आपके साथ। सीधे चले आइए कश्मीर हाउस। याद रखें कश्मीर हाउस बेगम बाजार हैदराबाद। शमा जो रोशनी फैलाए और शमा बासमती राइस हर तकरीब की शान बढ़ाए। पूरे खानदान का भरोसा जिस पर हो और हर किसी की पसंद बन जाए। शमा क्लासिक बासमती राइस। इसका दाना दाना अलग जो हर दावत की लज्जत बढ़ाए। 25 किलो, 10 किलो, 5 किलो और 1 किलो के बैग में अब हर सुपरमार्केट, जनरल स्टोर और किराना स्टोर में दस्तयाब है। शमा क्लासिक बासमती राइस।